Dr. Bagga. Hi, good morning, ma'am. How are you? Very well. Thank you for joining us in this podcast called Brain in You. I know that you have an exceptional record in occupational therapy, and I have seen some of the work that you've been doing. And this is a space that almost every parent definitely at least once with their children, they go through occupational therapy. So this particular topic for me is going to be extremely interesting. I have a lot of questions that I have to ask you today. And the idea will be that the listeners go back with some solutions or answers to their doubts. So we can keep it since you work with parents so closely, you would know what kind of confusion prevails in their mind. So we will just try to probably unblock those. So that is what is there in my mind right now. And before we start, why don't you first introduce yourself? Yeah, absolutely. I'm an occupational therapist, and I've been working in this field for last 18 years. And I've worked in many schools as a consultant. I have my center. I have my own early intervention center, where we are trying that to diagnose the autism as soon as possible. Though I'm not a right person to diagnose it, let me be very clear. But if the kid who has come to us, maybe for a general counseling, or maybe if they have any doubt, because sometimes usually what happens now is that with the mouth and mouth references, sometimes the kids are coming or the parents are coming to us कि सर हम डॉक्टर के पास नहीं गए, हम स्ट्रेट अवे आपके पास आए बिकॉज आप ऐसे बच्चे देखते हैं. So early बिल्कुल. intervention is one of the most important thing, and I am sensory integration certified therapist from Southern California University, and I have done lots of tips and bits courses, which is very important to be Mm. collaborative with the sensory thing. And that's it. That's it. चल रहा है ये सफर. I will start this. Let me first give you a background of the listeners. Who are these listeners today? So a very quick background on Ayurveda. You may or may not know that we work in the area of nutrition. So we make food nutrition, and this nutrition is consumed by children, all sorts of children, also children who have autism or ADHD or learning difficulty. And in this journey, we have catered to almost 6 lakh children so far. So I would say that mostly these children are in the age group of 3 to 10. Now, and within India, these children are based out of all sorts of states and cities. So I would say they're equally distributed between across India. So giving you that perspective, let me ask my first question. Sure. Okay, so this is something very, very common. मेरे को आके पेरेंट्स बोलते हैं कि हमने बहुत पैसा खर्च करा, मतलब हजारों रुपए खर्च करे थेरेपी पे, बट अभी भी वो कंफ्यूज्ड रहते हैं कि कुछ काम क्यों नहीं कर रहा है. सो द क्वेश्चन दैट दे आस्क इज दैट हाउ डू पेरेंट्स नो इफ द थेरेपी इज एक्चुअली वर्किंग? Okay. See, what I believe is कि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है. इसमें ना बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, मुझे लगता है कि हमें कवर अप करने पड़ेंगे. फर्स्ट, एक्सेप्टेंस. ये मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट, बिकॉज कई बार ना हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि व्हेन वी आर डीलिंग विद एन ऑटिज्म या स्पेशल नीड किड्स, इनफैक्ट आई शुड से, हमारा प्राइमरी टारगेट होना चाहिए इंडिपेंडेंट करना. दैट इज अ प्राइमरी टारगेट. ओके. तो मैं ये मानता हूँ कि पेरेंट्स जितने छोटे टारगेट्स लेके चलेंगे ना, तो उनको उतने रिजल्ट्स अच्छे लगते हैं. लाइक मदर्स आती है ना जो थेरेपी सेंटर से बच्चों को लेके आती है, वो छोटा सा एक डेवलपमेंट देखते हैं ना, देर फील सेटिस्फाइड. मगर अचानक से 2 महीने बाद एक फादर आते, कहते हैं सर ये तो वैसे का वैसे ही है. वो तो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट चीज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंडली, आई शुड से कि प्रोफेशनल्स को और भी प्रोफेशनलिज्म के साथ वर्क करना चाहिए, बिकॉज थेरेपी सिर्फ थेरेपी सेंटर तक ही लिमिट रह जाती है. पेरेंट्स को कुछ समझ नहीं आता कि बच्चे को इशू क्या है, डील कैसे करना है. तो ये जो एक लैग है ना, जो कि थेरेपी सेंटर्स तक ही थेरेपी रह जाती है, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. खासकर ओटी की मैं बात करूं तो वो एक ऐसा प्रोसेस है, लाइक दैट नीड्स टू बी हैपन 24/7. अगर एक बच्चा मग लेके पानी डाल रहा है, दैट्स एन ओटी, बिकॉज उसमें मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, उसमें मुझे ग्रिप चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और एक जो चीज मैं देखता हूँ कि शायद थेरेपिस्ट
और पेरेंट्स के बीच में ना एक गैप है, पेरेंट्स कंफ्यूज हैं, हम्म कंप्लीटली कंफ्यूज है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस आई फील। हम्म हम्म थर्ड, हम्म अगेन मैं हर चीज थेरेपिस्ट पे नहीं डालूंगा, पेरेंट्स का ना हम्म ये मानना है थेरेपी से बच्चा ठीक होगा, ऐसा नहीं। तो मेरे पास भी पेरेंट्स आते कहते सर एक की जगह 2 सेशन ओटी के दे दो, एक स्पीच हम्म दे दो, 2 स्पेशल एड दे दो, सुबह 8 से लेके 11 तक आप रखो, फिर इसका प्ले स्कूल है, फिर शाम को। तो ये भी एक वन ऑफ द रीजंस है। तो हम्म, कई रीजंस हैं, बहुत मुश्किल है कहना, बट हम सारे आई थिंक एक पेज में नहीं है, वी आर नॉट इन सिंक विद ईच अदर, दैट्स द या। मेजर पॉइंट। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पॉइंट से रिलेटेड है, एंड आई थिंक यू टच्ड ऑन इट आल्सो, कि पेरेंट्स जब इतना पैसा खर्च करते हैं, लाइक यू राइटली सेड, वो पहले थेरेपिस्ट के पास जाते होंगे, उनकी शायद एक्सपेक्टेशन जो होती होगी, हो सकता है सही भी होती हो, नहीं मीट होती होगी, फिर वो दूसरे के पास जाते होंगे, तीसरे के पास जाते होंगे, बट इस प्रोसेस में I want to understand from the OT perspective ki, is it true that some traditional OT activities that are being used are outdated but are still being used? See, I'll go in a different way. I feel कि ट्रेडिशनल ओटी, जब हम ट्रेडिशनली वर्क करते थे, मुझे रिजल्ट ज्यादा अच्छे दिखते थे। लेट मी गिव यू Sure. एन एग्जांपल। गांव में एक बच्चा पेड़ में रस्सी लगा के टायर लगा के स्विंग कर रहा है, ये 100 साल 150 साल पहले हम लोग देखते थे, हम लोगों ने मूवीज में भी देखा। आज हम वो थेरेपी सेंटर्स में यूज कर रहे हैं, Yeah. और हमने बंजी रोप लगा दी, वो बहुत अच्छा सा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया। अगर आप मुझसे पूछोगे, ट्रेडिशनल थेरेपी इज द बेस्ट थिंग। हाँ, मगर ट्रेडिशनल में लाइक अब लाइक विद द स्टडीज कमिंग ऑन, हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेडिशनल को ब्लेंड करें लेटेस्ट ट्रीटमेंट के साथ। लाइक बहुत सिंपल सा मैं एग्जांपल्स के साथ, बिकॉज मुझे लगता है कि जितना हम अच्छा एग्जांपल्स के साथ समझ सकते हैं, वैसे हम ऐसे नहीं समझ पाएंगे ना। एक बच्चा है जो कि लॉस्ट है, हमने उसको स्विंग दिया एंड ही बिकेम अवेयर। अब मैं उसके साथ, दैट इज अ ट्रेडिशनल मेथड। अब लेट मी यूज अ म्यूजिक थेरेपी विथ हिम। द मोमेंट आई पुट द म्यूजिक थेरेपी, जो कि एक लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, आई ब्लेंडेड बोथ ऑफ देम टुगेदर, आई कैन सी इवन बेटर अवेयरनेस इन द किड। So we can't leave the ठीक traditional है. thing. No, we हम्म can't. Not at all. हम्म मैं बहुत हम्म ट्रेडिशनली वे से यूज करता हूँ थेरेपीज को, बट हम सिर्फ ट्रेडिशनल के साथ नहीं रह सकते। एज अ थेरेपिस्ट मैंने बहुत अपडेट किया है। प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हो गए, म्यूजिक थेरेपी हो गई, बहुत सारे और ट्रीटमेंट है जिन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं। तो इट्स अ ब्लेंड मैम, तो कोई ट्रेडिशनल मैं ये नहीं Makes sense. बोलूंगा। बट Makes sense. यहाँ पे अगेन मैम आई विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, कई थेरेपिस्ट सिर्फ ट्रेडिशनल वे में ही चलते आ रहे हैं, हम्म वो भी बिल्कुल गलत है। हम्म अब होना क्या चाहिए, ट्रेडिशनल वे होम प्लान बन जाए, ये होम हम्म प्लान है। यू आर हम्म कमिंग टू मी, ट्रेडिशनल अब घर पे करा, आई एम हियर विथ मोर ऑफ द एजुकेशन, मुझे और ज्यादा पता है, लेट मी डू जो आप घर पे नहीं करा सकते, तो वो नहीं हो रहा। दोनों ही तरीके से आई थिंक कि इसका जवाब मिक्स होगा मेरे हिसाब से। हम्म. Valid point. I agree. तो वी हम क्योंकि पेरेंट्स से ऑलमोस्ट एवरी डे आई थिंक 700-800 पेरेंट्स से बात करते हैं, एक चीज जो बहुत ज्यादा कॉमनली बाहर आती है वो होता है सेंसरी इश्यूज. नाउ आई नो कि सेंसरी इश्यूज के लिए पेरेंट्स गो फॉर थेरेपीज, दे डेफिनेटली डू अ लॉट ऑफ ओटी. ओटी में बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं सेंसरी के लिए, बट दिस क्वेश्चन दैट पेरेंट्स वांट टू नो इज, कैन अ चाइल्ड आउटग्रो सेंसरी इश्यूज? सी, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ द किड फर्स्ट, सेकेंड, आप बच्चे को जितना ज्यादा इंडिपेंडेंट करेंगे, sensory issues are going to get down. Why I'm saying this is, since it's a neurological disorder, so there is a problem in the synapses in the brain, कोई connections में problem है। अगर हम किसी तरीके से उन कनेक्शंस को करेक्ट करते हैं, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा करेक्ट कर दे, दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, मगर हम किसी तरीके से उन कनेक्शंस में कुछ कंस्ट्रक्टिवली करें, एक एक उसके, रीवायर, हाँ, मे तो बी. मे बी रीवायर करें उसको, हम्म तो हमें लगेगा कि बच्चा इंडिपेंडेंट हो रहा है। जितना ज्यादा बच्चे का कॉग्निटिव लेवल बढ़ेगा, इंडिपेंडेंस हम्म स्किल्स बढ़ेंगे, जितना ज्यादा अवेयरनेस आएगी, जितनी ज्यादा वर्बल वो होगा, कम्युनिकेशन आएगा, सेंसरी इश्यूज डिक्रीज होंगे, डेफिनेटली डिक्रीज होंगे। मेरा ये मानना है कि आजकल ना ये चल रहा है कि बिकॉज सेंसरी, मेरा जो चैनल है उसमें भी ना सेंसरी को मैंने बहुत वैल्यू दी है, लेकिन मैं ना इन दी एंड पेरेंट्स को यही कहता हूँ, सेंसरी इतनी जल्दी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, हम्म आपके बच्चे का पीछा सेंसरी इश्यूज नहीं छोड़ेंगे। वी हैव टू एक्सेप्ट इट,
हमें उसके साथ चलना है। उसको साथ चलने का मतलब है सिर्फ उसी पे ही नहीं वर्क करना, उसको एक पार्ट लो, बाकी सारे एस्पेक्ट्स पे वर्क करते रहो। देयर हम्म। विल बी टाइम वो डिक्रीज होगा। किस लेवल पे होगा, इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन कि थेरेपी ने कितना इम्पैक्ट डाला है बच्चे पे, और बच्चे का जो सेंसरी स्टिमुलेशंस का या सेंसिटिविटीज का लेवल है वो है क्या। तो ये हर बच्चे के लिए अलग आंसर होगा। गॉट इट, गॉट इट। अच्छा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि और ये मैं बहुत नोटिस भी करती हूँ कि मान लीजिए बच्चे के कुछ सिम्टम्स दिखे उन्हें 2 साल की एज पे, 3 साल की एज पे, और आजकल मुझे नहीं पता कि एक्चुअली सारे पेरेंट्स को एक्सेस नहीं होते डॉक्टर्स का, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ देम कैन आल्सो जस्ट गूगल, मे बी आस्क समबडी। डू यू थिंक दैट दे इनवेरिएबली, मतलब वो बस ओटी करा ही देते हैं, उनको पता भी नहीं है कि इस बच्चे को ओटी की नीड है या नहीं? ऐसा कुछ होता है? आर दे सिनेरियोज जब आप ये बोलते हैं कि किस तरह के बच्चों को ओटी की नीड होती है? हेलो, हाँ मैम, एम आई ऑडिबल? हाँ, शुड आई रिपीट? Just give me a second, ma'am. Am I audible now? Is it fine? नाउ यू आर फाइन, आई विल जस्ट रिपीट द क्वेश्चन। Yeah, please. थोड़ा सा लैग है, इज इट? अभी ठीक है क्या? Lag है। Let अभी ठीक है शायद, आप देखो एक बार। I just give me a हम्म। yeah. Just give me a second. I think कि ये डोर मैंने enclose किया हुआ है, तो मे बी वाईफाई का इतना ज्यादा नहीं आ रहा। हम्म। But let me see. आप ठीक है मैम? Is it fine? हाँ, मतलब Oh, परफेक्ट, ठीक है। आई जस्ट रिपीट yeah, द sure. क्वेश्चन। So this question, invariably, what I've seen is that any child who has who's on the spectrum, may or may not be on the spectrum, but has some signs, maybe has सिर्फ स्पीच में दिक्कत है, मान लीजिए कि उसने शायद 2 साल तक अपने कुछ जो पहले कुछ वर्ड्स बोलने थे वो नहीं बोले, फिर भी वो पेरेंट लाइन से, जैसे आपने बोला, जाके पहले ओटी कराता है, स्पीच कराता है और बिहेवियर कराता है, बट मैंने देखा है अक्सर हर पेरेंट ओटी जरूर कराता है। सो माय क्वेश्चन इज दैट इज ओटी ओवर हाइप्ड, or should a parent know that in what scenario is OT needed? Ma'am, see, OT is not overhyped because, to be very frank, OT का मतलब होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ठीक है, तो अगर 2 साल का बच्चा अपना ऑक्यूपेशन नहीं कर रहा, मे बी स्पीच उसको करनी चाहिए, दैट्स अ टाइम विच ही हैज टू डू इट। अगर वो नहीं कर पा रहा, या सर्टेन स्किल्स हैं जो वो पेरेंट्स को लग रहा है कि रेड साइंस हैं, तो डेफिनेटली ओटी हेल्प करेगी, डेफिनेटली ओटी हेल्प करेगी। लाइक आप, यू वोंट बिलीव कि अगर बच्चा प्री मैच्योर है, वो एनआईसीयू में है, तो भी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को बुलाया जाता है, जो बेसिकली अच्छा। न्यूरोनेटोलॉजिस्ट होते हैं, जहां पे हम सेंसरी स्टिमुलेशंस देते हैं। दो आई एम नॉट दैट पर्सन, बट हैं। तो इट्स नॉट अच्छा। अबाउट ओवर हाइप्ड। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो थेरेपिस्ट है ना, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि 1 साल के बच्चे के साथ मुझे क्या करना है, 2 साल के बच्चे के साथ क्या करना है, 3 साल के बच्चे के साथ क्या करना है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि जब बच्चा 2 साल का मेरे पास आ रहा है, तो मैं वही ट्रीटमेंट लगा रहा हूँ जो मैं 3 साल पे लगाता हूँ। हम्म। ये लैग इसलिए आता है बिकॉज कहीं ना कहीं हमने माइलस्टोन्स को वैल्यू नहीं दी, या फिर कहीं ना कहीं हम लोगों ने इतने अच्छे तरीके से चीजों को समझा नहीं है। अगेन मैं एक हम्म। एग्जांपल के साथ जाऊंगा। नो मैटर कितना भी प्रॉब्लम हो, बच्चे में स्पीच की प्रॉब्लम, आई कांटेक्ट नहीं है, मैं कभी भी उसको बीम्स पे नहीं खड़ा करूंगा, मैं बैलेंस बोर्ड में नहीं खड़ा करूंगा 2 साल के ओके। बच्चे को। मैं प्ले करूंगा, वो मेरी थेरेपी हम्म। हो जाएगी। मुझे पीक बुक करना है, मुझे प्ले करना है, मुझे उस लेवल पे वर्क करना है जो 2 साल के बच्चे के साथ करना चाहिए। यहाँ पे थेरेपी लैग आ जाती है, थेरेपिस्ट के लिए थेरेपी कराना एक ड्यूटी बन जाता है। हम्म। हम्म। तो ये प्रॉब्लम है। अदरवाइज आई थिंक कि मुझे ऐसे लगता है कि अ, हर बच्चे को तो नहीं, अगर हल्का सा कुछ रेड साइंस या फ्लैग्स दिखते हैं हमें, कोई बात नहीं, ठीक है बच्चा, चले जाओ ओटी के लिए, 2-4 एक्सरसाइज सीख लो जो घर पे आप करवाएंगे, जो हर बच्चे के साथ करनी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। यस, मगर गॉट वो इट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की नॉलेज बहुत गॉट इट। So maybe my next question is actually linked to that. That इंपॉर्टेंट। what signs should parents not ignore and start OT? ओके, थ्री थिंग्स विच आई बिलीव
they shouldn't ignore is one, if the child is not imitating. चलो imitation को भी छोड़ते हैं, if the child is not responding to the facial expression, ये प्राइमरी है। 3 महीने का 4 महीने का बच्चा जब मम्मी उसके डाइपर्स चेंज कर रही हैं और जब मम्मी उसको बुला रही हैं, हर बच्चे को रिस्पॉन्ड करना है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो वहां पे अगर कोई बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो मेरे लिए वहां से ही रेड फ्लैग स्टार्ट हो 3-4 जाएंगे। महीने पे। एग्जैक्टली कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्ड करता है। हम जब टिकल करते हैं, हम जब उसको गूगल करते हैं, तो Yeah. आप देखोगे कि यू कैन सी दैट ही इज रिस्पॉन्डिंग। तो ये एक चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। रिसेंट स्टडी कहती है कि प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस में अगर हम जाएं, लाइक 3 से 4 महीने के बच्चे के एक सर्टन रिफ्लेक्सेस होते हैं जो कि बहुत इजीली आप चेक कर सकते हैं, अपने पीडियाट्रिशियन को बोल सकते हैं चेक करने के लिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं वो तो उसके जो रिफ्लेक्सेस है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे या इंटीग्रेट होने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं लग रही, दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस। मगर यहाँ पे आपको प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए होगी, डेफिनेटली आपको पीडियाट्रिशियंस की हेल्प चाहिए होगी। सेकेंड व्हाट आई बिलीव इज आई कॉन्टैक्ट, नेम रिस्पॉन्स। अगर आपने कोई टॉय लगाया है, ही इज नॉट लुकिंग एट द टॉय। अगर आपने उसको गोद में लिया है या सर्टन उसमें देखा है तो आपने देखा है कि वो ट्रैकिंग नहीं कर रहा, कोई उसके सामने से निकल रहा है। तो एक नहीं मैम, देखो ये रिलेटेड है, ऑल थिंग्स आर रिलेटेड। हम ये नहीं कह सकते कि एक दो साइंस में, बिकॉज एक दो साइंस तो कभी हो ही नहीं सकते। आपको लगातार 7-8 साइंस होंगे जो देखेंगे। एंड अगेन मैं अगर 9 महीने की बात करूं या 8 महीने के बच्चे की बात करूं, माइलस्टोन्स हम बहुत इजीली चेक कर सकते हैं। अगर वो क्रॉलिंग नहीं कर रहा, बड़े वेग तरीके से क्रॉलिंग कर रहा है, या फिर क्रॉलिंग से पहले कि उसने माइलस्टोन स्किप कर दिए, वो नीलिंग पोजीशंस में नहीं है, या फिर अगर आपने गोद में लिया बच्चे को तो बच्चा मूव कर रहा है, फ्लॉपी हो रहा है बहुत ज्यादा, किसी ने उठाया वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा है, कई साइंस हैं इसके। Got बट it. जनरल रूटीन, इमिटेशंस, पीकाबू रिस्पॉन्स, नेम रिस्पॉन्स, दीज आर द बेसिक थिंग्स जो कि Got it. एक साथ में आने चाहिए। I think very useful. अच्छा, this is something very interesting. I think ये थोड़ा generalize हो गया है. ADHD is getting a little bit generalized, जिसमें बच्चा हाइपर एक्टिव है, ADHD है, या बहुत शैतान है, इसके बीच की बहुत थिन लाइन है जो मर्ज हो गई है. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, इफ अ चाइल्ड कैन नॉट सिट स्टिल, इज इट ऑलवेज ADHD? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। सी एडीएचडी, हमें ना एक चीज समझनी पड़ेगी, एडीएचडी को ना हम लोग समझ ही नहीं पाए हैं। डेफिनेशन हमें लगता है बहुत सिंपल है, बच्चे में अटेंशन नहीं है और वो हाइपर एक्टिव है। ट्रस्ट में, मेरे चैनल में ना हर पेरेंट को लगता है उसका बच्चा एडीएचडी है, हर पेरेंट को लग रहा है। तो बेसिकली देखिए, एडीएचडी बहुत एक 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 डिसऑर्डर है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। हम बैठ के किसी भी बच्चे को टैग नहीं कर सकते, दैट इज वेरी रॉन्ग। सो बेसिकली अगर आप मुझसे पूछेंगे, अगर 2 साल तक बच्चा हाइपर एक्टिव नहीं होगा, वो एक्सप्लोर नहीं करेगा, तो लर्न कहाँ से करेगा, है ना? सो अगेन वो ना क्लियर इंडिकेट कर देता है, लाइक अगर बच्चा हाइपर एक्टिव, बहुत एक्सेसिव है, बहुत एक्सेसिव हाइपर एक्टिव है, वो ना क्लियरली इंडिकेट कर देती हैं चीजें। और अटेंशन भी क्लियरली इंडिकेट हो जाता है। अगेन वन ऑफ द रीजंस होता है माइलस्टोन्स। आप माइलस्टोन्स चेक कर लो, माइलस्टोन्स में कई जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं मैम, यू वोंट बिलीव, 8 महीने में चल लेते हैं। अब वो क्या होता है, वो क्रॉलिंग स्किप कर दी उन्होंने, नीलिंग स्किप कर दी उन्होंने, वो स्ट्रेट अवे चलने लग गए। सो वो भी एक हाइपर एक्टिविटी का साइन है। तो माइलस्टोन इज वन ऑफ द थिंग्स विच वी, अगेन मुझे लगता है हर पेरेंट को आना चाहिए, और हर पीडियाट्रिशियन को ना वो जो वैक्सीनेशन का चार्ट बनता है ना, उसके साथ एक माइलस्टोन्स का चार्ट भी प्रिंट करके देना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंडरस्टूड. मेरे हिसाब से अगर बच्चा वर्बल है, वो सारे रिस्पॉन्सेज अच्छे दे रहा है हमें, और अगर हम उसके सामने कुछ प्ले कर रहे हैं, वो अंडरस्टैंड कर रहा है चीजों को और वो अवॉइड नहीं कर रहा चीजों को, तो देर इज नो साइन ऑफ एडीएचडी। हाँ वो भाग रहा है, दौड़ रहा है, तो डेफिनेटली वो हाइपर एक्टिव नहीं है, वो एक्सप्लोर कर रहा है चीजों को। वेट वेट टिल द एज ऑफ 2-2.5। और आपको ना हर 3-3 महीने में आपको दिखेगा, नहीं 3 महीने पहले तो यार ये बैठता नहीं था, अब तो ये बैठने लग गया है, अब तो मेरे साथ ये Got टॉय it. कर रहा है। तो वो समझ आ जाएंगी चीजें इजीली। Okay. And one more thing that is playing a big role in our children's life now is screen time and gadget. So the question that I have for you is, does screen time and gadget actually undo the progress that you make in OT? uh no, it's not the gadgets, it's the use of the gadget. Okay,
नाउ यू वोंट बिलीव, मेरे दो बच्चे हैं, माय डॉटर इज 9 years old एंड माय सन इज गोइंग टू बी 3। मुझे लगता है कि मेरे दोनों बच्चे ने कलर्स, अल्फाबेट्स, वो सब कुछ स्क्रीन से सीखे। Same. लेट्स बी Yeah, वेरी same, ट्रू, ठीक same, है। same for आजकल my हर boys. बच्चा ऐसे ही सीख रहा है। Hmm. Hmm. तो अगर उन्होंने सीखा है और हम कह रहे हैं स्क्रीन टाइम गलत है, तो दोनों चीजें कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आती है मैम? प्रॉब्लम आती है जब बच्चा स्क्रीन के आगे बैठा है, बैठा है, बैठा है, उसको कोई होश नहीं है अपने एनवायरनमेंट की। वो ऑब्सेस्ड हो चुका है। अब वो ऑब्सेस्ड कैसे होगा जब हम एक्सेस में दे रहे हैं? मैं हमेशा यही कहता हूं कि स्क्रीन इज नॉट सो बैड। आप दो बच्चे को, लेकिन दो चीजों का ध्यान रखो। जब वो स्क्रीन देख रहा है ना, तो आप बीच में उससे बात करो, उसके साथ हो। अगर स्क्रीन में कुछ हो रहा है तो आप भी उसके साथ करो, ताकि वो आपको भी देखे, वो स्क्रीन को देखे, और हमें यकीन हो कि वो लॉस नहीं हो रहा। वो देख रहा है, वो चीजों को समझ रहा है। तो ना उस चीज को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। स्क्रीन में अगर वो देख रहा है, स्क्रीन का मतलब टीवी है, मोबाइल तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे स्क्रीन में टीवी के लिए बात कर रहा हूँ, जो स्मार्ट टीवीज हैं। तो आप जैसे बीच में इंटरवीन करोगे ना, तो वो एंजॉय करेगा, वो प्ले करेगा। होता क्या है कि मम्मी किचन में लगी हुई हैं, पापा ऑनलाइन, उनका हाइब्रिड मोड है, जो भी है वो काम पे लगे पड़े, 8-8 घंटे बच्चा टीवी देख रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है, जो मैं टीवी देख रहा हूँ, दैट्स माय विजुअल सिस्टम विच गेट स्टिमुलेटेड। अब सेंसरी सिस्टम की एक प्रॉब्लम है कि एवरी सिस्टम शुड डेवलप इन अ प्रॉपर वे, एक बैलेंस्ड वे में होना चाहिए। Mm. तो अब 8 घंटे बच्चा क्रॉल नहीं कर रहा, वो एक्सप्लोर नहीं कर रहा, वो जंप नहीं कर रहा, वो सिर्फ 8 घंटे बैठा हुआ है, तो होगा क्या? उसका विजुअल सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिवेट होगा, बाकी सिस्टम हैम्पर हो जाएंगे। तो इन दी एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट द ऑटिज्म, ये किसी बच्चे के साथ में अगर मैं आपको बात करूं, तो उसके जब सेंसी सिस्टम बैलेंस वे में नहीं चलेंगे, तो आप देखोगे कि फिर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है सेंसरी, तो स्क्रीन टाइम। सो बेसिकली कहने का मतलब है, कोई भी चीज गलत नहीं, एवरीथिंग इज परफेक्ट, आप यूज सही तरीके से करिए। Mm. Before I end this, I have this last question that I think parents can learn and walk away with. What is that one thing that you wish every parent should stop doing today? Should stop doing today. When you enter home, because nowadays both the parents are working, throw your mobile somewhere. That's a very simple thing, and it's with me also. And I think आप भी मैम, हम सारे कल्प्रेट हैं, आप भी और मैं भी हूँ। लेट्स बी वेरी ट्रू, मैं भी यही कर रहा हूँ। मोबाइल थ्रो कर दो, कुछ मत करो, just throw your mobile. Automatically you will come around your kid's world. That's the only thing. So बच्चे को भी मत छेड़ो, थ्रो करो मोबाइल। बहुत बड़ी बात है ना, बहुत मुश्किल काम है आजकल पेरेंट्स के लिए। बहुत मुश्किल है। दैट इज ट्रू। हम पूरे दिन तो फोन खींचते रहते हैं उनका, हमारा बगल में रहता है। हाँ बिल्कुल, यही होना है, यही है। This has been very, very useful for me, and I think all the answers that you have given are worth that parents listen to them and they understand from them, maybe apply. So thank you so much for this, Dr. Vaga. I थैंक truly यू फॉर enjoyed the कॉलिंग। session. थैंक यू फॉर कॉलिंग मैम। आई होप कि ये मैक्सिमम शेयर हो, बिकॉज ऑब्वियसली ये पेरेंट अवेयरनेस के लिए है, एंड उनको रियली चाहिए। एंड मैं यही बोलूंगा कि मैक्सिमम देखें ये, और एटलीस्ट को सीखें इसमें से। Absolutely. And I think hoga, because you've given a lot of tips. बहुत सारे common questions हैं that is there in everyone's mind. So I just hope that they learn and they apply, and then they come back and tell us. छोटी छोटी changes से काफी बड़े changes दिखते हैं. They just have to give time. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Yeah. सो Thank you. थैंक यू फॉर कॉलिंग मैम, विल मीट सून। Yes, of course. बाय बाय मैम।